Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. This is Vimana Thakur. So guys, कैसे हो आप सब? I hope that you all are great and doing well. Okay, so this video is going to be a very unfiltered kind of a video, a very random kind of a video, because this video was just a thought in my mind 15 minutes back and now I just started shooting it. So basically I'm gonna share my experience in this video, as I really don't, because I don't know, I'm just turning into this person that very personal, and मतलब मैं पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी एक दोस्त है जिसके साथ I share everything, like एक भी नहीं, एक मतलब दो है, but एक वैसी है जिसके साथ मतलब मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ. So yeah, I'm not into this friendships and groupism and all. So yeah, so basically I'm gonna tell you my experience, that what I have faced today itself. So let me just tell you my backstory behind it. As all of you, or maybe majority of you, would know that I'm into this acting and modeling field. So basically, when you are in this field, you have to give auditions. So when you give auditions, you get selected for a particular shoot or a particular print shoot, or it can be any kind of a shoot, print shoot, series and web series, movie, anything. So the production will cast you. Now like I recently searched some production, some casting directors on Google. So basically I got a number, so I like texted like all of them. So from them, some were really very sweet, who texted me back. Okay. Well, some of them were really very sweet, who texted me back saying, okay, now we'll call you or we'll give you the script, so you have to prepare it and come. और मैं गई भी थी, और जो फर्स्ट डे जब मैं गई ऑडिशन देने के लिए, आई स्वेयर टू गॉड, दे वर जस्ट सो स्वीट, they were just so gentle towards me, and they were just like, oh my god, they were really admiring me, they were really complimenting me. So I was just like, oh my god, they're just so sweet. So they were really good and cooperating, because when I am giving audition, I take 2 to 3 takes. Okay, basically because I am that kind of an actor, you can say, who matches with the vibe. If the vibe is okay, if the director is cooperative, if the environment is okay, then I can feel the emotion of the character which is given to me. Okay, now you know that what I'm trying to say. If तुम लोगों में से कोई भी इस acting field में होएगा, तो you all would relate what I'm trying to say. So basically ये बात है. And now what happened today was, I gone to this production house. I'm not gonna take any name and the name of the director and all, but I gone to this place, and basically I couldn't go yesterday because I was really very tired. I had to do a lot of work together, so I could only attend only one audition. So like I reached there, like the production house, the vibe and the aura was really negative. I started, I'm that kind of person who can feel the vibe in seconds. Like if I'm talking to you, if the aura, if the vibe doesn't matches with me, then I'm just sorry, you are not in my life. So it's like that, because I'm very that energy believing kind of a person, if that makes sense. So energy matters a lot for me, and उधर की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थी, और बिल्कुल भी मुझे मतलब सही नहीं लग रही थी बेसिकली. तो आई एंटर्ड देयर, एंड देन there was a register in which I had to
write each and every information, my number and everything. So चलो ये सब तो बात ठीक है, इतना तो हुआ, वो तो होता है हर एक प्रोडक्शन में. Now what happened that I don't know who that person was who was sitting in front of me, but he asked me this thing that आप करते क्या, and he asked this in a very, I don't know, mean way, or I don't know, I just didn't feel like he's asking it in a very positive kind of a way. But yeah, I felt something really negative. So it's my like personal opinion. I don't know तुम लोग करते हो कि नहीं करते हो believe, but I literally believe in energies, and trust me when I say this. Whenever I talk to you, I can, you know, tell that what kind of person are you. Are you giving me negative kind of aura? Are you giving me positive kind of aura? I can tell if you're confused in life, if you're not. I do believe in energies. Trust me when I say this. So basically, when that person asked me this, क्या आप करते क्या हो, I politely, firmly, I replied to him that okay, I just gave my 10 exam, now I'm looking forward into this field, like, auditions and stuff, modeling, acting, and whatever I can achieve in this field, I want to. So then he was like, okay, now I'm giving you a script, तो आपको वो करके मुझे दिखाना होगा. So I was like, okay. So then there was this person who was sitting next to my mom. तो उन्होंने जो मेरे सामने बैठे हुए थे, let's call him, let me give him a name. Okay, let's call him Watermelon. I don't know, I don't have any name. So let's call him Watermelon. And the person who is sitting next to my mom, let's call him Mango. So Watermelon told Mango to go and वो मेरा स्क्रिप्ट लेके आए. तो मैंगो गया और वो मेरी स्क्रिप्ट लेके आया. ठीक है, अब जब वो मेरी स्क्रिप्ट लेके आया तो मैंने देखा उसको स्क्रिप्ट को. तो उन्होंने मुझे, जो वाटरमेलन है, वो मेरे को क्या बोला कि इस स्क्रिप्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यू हैव टू वो करना है, कि मतलब वो परफॉर्म करके दिखाना था. इसलिए ओके. तो वो एक, मतलब कैसा था वो स्टोरी, ऐसा लव काइंड ऑफ स्टोरी था. वो लवी डवी वाली फीलिंग होती है कि एक लड़की की शादी हो रही है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कैसे, मतलब थोड़ा सा रो थ्रू वाला सीन, सैडनेस, लव एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली जब मैंने वो स्क्रिप्ट देखा तो आई वॉज वेरी फेमिलियर विद द स्क्रिप्ट. नॉट फेमिलियर बट यू नो व्हाट आई मीन. सो बेसिकली मैं ऐसे हो गई कि ठीक है यार, स्क्रिप्ट है, लेट्स डू इट. बट मैंने उनको, मतलब मैंने क्या बोला, मैंगो और वाटरमेलन दोनों साथ साथ में मतलब बैठे हुए थे, ठीक है, आमने सामने. तो मैंने मैंगो को क्या बोला कि भैया मेरा हो चुका है. तो फिर वाटरमेलन मैंगो को क्या बोलते हैं कि ठीक है, तुम इसको अंदर लेके जाओ, तो वहाँ पे शूट करना. लेकिन मैंने फिर मैंगो को क्या बोला कि आप रुको, मैं थोड़ी देर वॉशरूम से आती हूँ. तो मतलब मैं हर ऑडिशन से पहले ये चीज़ करती हूँ कि मैं वॉशरूम तो होके जाती हूँ, बिकॉज मैं वॉशरूम में थोड़ा सा एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस कर लेती हूँ. तो अब मैं उधर ना, मुझे देखना था कि मतलब वो प्रोडक्शन हाउस का एनर्जी क्या है और मतलब वाइब क्या है. यू वोंट बिलीव मी, लाइक यू वोंट बिलीव, प्रोफेशनल के नाम पे इट वॉज ज़ीरो. बिकॉज अंदर जब मैं गई, ठीक है, तो अंदर जाके देयर वाज दिस लेडी हु इज लाइक, पैर ऐसा ऊपर करके टेबल के ऊपर बैठी हुई है. ओके, इट्स ओके, तुम बैठे हुए हो, डजंट मैटर. बट कोई आता है, देन यू लाइक, यू हैव टू बिहेव कि हाँ भाई यार, यू आर प्रोफेशनल एंड यू वर्क, एंड तुम्हारा इतना अच्छा प्रोडक्शन है, तुम्हारा इतना अच्छा नाम है, गूगल पे तुम्हारे प्रोडक्शन का नाम है. तो एक होता है ना कि थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए बंदे के प्रति. बट ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा. तो दैट लेडी वाज जस्ट सिटिंग लिसनिंग सॉन्ग्स. लाइक ओके, शी इज वाइबिंग. तो मैं अंदर गई. अब अंदर जाने के बाद एक मेरे को बेड दिखा. अब बेड पे एक बंदा सो रहा है. मैं तो पहले मेरे उसको देख के मेरी फट गई, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सो रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था बाप रे, ऐसा, आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट मैंने उस टाइम पे सोचा क्या लाश वार सो रही है क्या भाई. तो नो नीड टू गेट ऑफेंडेड, बट या, इट वॉज जस्ट माई थॉट्स
रैंडम थॉट्स. सो यस, तो बेसिकली उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना था. तो आई आस्क्ड दैट लेडी दैट वेयर इज द वॉशरूम. देन शी वाज लाइक अंदर है, तो अंदर आपको जाना होगा, लास्ट गेट जो दिखेगा वो वॉशरूम है. तो मैं गई वॉशरूम के अंदर. वॉशरूम मैंने जैसे खोला, इट वॉज रियली वेरी स्मॉल वॉशरूम एंड इट वॉज रियली अनहाइजीनिक. तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो देयर बिकॉज आई एम लाइक बिलीवर ऑफ हाइजीन एंड एवरीथिंग. वो बात अलग है कि मैं 2-3 दिन तक नहाती नहीं हूँ, मैं मैक्सिमम 2 दिन. बट या जब भी मैं ऐसा बाहर जाती हूँ या फिर कोई भी घर पे आ रहा होता है, देन आई एम लाइक ओके, आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ देम. सो येस, तो ये सब कुछ हुआ. एंड देन मैं ना वहाँ की वाइब समझ गई थी. बेसिकली मेरे को वाइब जाना था और मैं वाइब समझ गई थी. तो ऐसा सब कुछ हुआ. एंड when I came back, I told them, okay, now I'm ready, so let's shoot this. वो जो मैंगो है वो मुझे लेके गया, ठीक है, अंदर वाले रूम में. और मेरी मॉम भी मेरे मतलब पीछे पीछे आई. देन बिकॉज ऑफ कोर्स मॉम भी समझ रही थी कि मेरा एक्सप्रेशन देखे, शी वाज लाइक कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है तो क्या सोच रही है. सो वो हम दोनों का कनेक्शन बैठ जाता है. तो देन शी वाज लाइक कि वो भी अंदर आई. एंड अब पता नहीं क्या हो रहा था. एज आई सेड कि मैं वाइब बिलीवर हूँ. जब तक वाइब नहीं होती, जब तक वो कोऑपरेशन नहीं होता है जो भी बना रहा है, या फिर वो मुझे लगता नहीं है कि हाँ यार ये एनर्जी है, जिस मतलब वो फील नहीं आती है यार. मैं बता नहीं सकती. एज अ स्मॉल एक्टर आई कैन से मुझे फील चाहिए होती है यार, वो फील नहीं मिल रही थी मुझे उधर. तो बेसिकली वो जो कैमरा मैन था, यू वोंट बिलीव, वो फ़ोन से शूट कर रहा था. मुझे 2 मिनट के लिए मन कर रहा था कि मैं उसको बोलूँ भाई तो एक काम को, तू मेरा ही आईफोन ले ले, तो उसी से शूट कर ले, लेकिन थोड़ा तो प्रोफेशनल हो. मतलब प्रोफेशनल के नाम पे वो बंदा ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो. और आई वॉज लाइक, एक सेकेंड, ये एंड्रॉयड से शूट कर रहा है, ये मुझे ये नहीं बोल सकता था कि तुम घर से ऑनलाइन ऑडिशन शूट करके दे दो. बोल सकता था ना भाई, लेकिन नहीं, इसको तो बोलना ही नहीं है. तो चलो ठीक है, वो बात भी रखते साइड में रखते हैं ना. बट ये क्या लफड़ा था कि तुम एंड्रॉयड से शूट कर रहे हो, ठीक है एंड्रॉयड से शूट करो. अब मेरे को पता है क्या बोलता है वो मैंगो. मेरे को बंदा कहता है कि आप ना 2 टेक से ज़्यादा नहीं दे सकते. मैं लाइक भाई तुमने, मतलब बंदे ने स्टार्ट तक नहीं किया है ऑडिशन शूट करना और पहले ही मेरी फाड़ के रख रहे हैं, मेरे सर पे प्रेशर डाल रहा है कि तुम्हें 2 टेक से ज़्यादा नहीं दे. मेरा ऐसा है कि अगर तुम मेरे पे प्रेशर डालोगे मैं घंटा कुछ नहीं करूँगी, ठीक है. मेरे को चाहिए भाई माइंड फ्री वर्क. मैं करने वालों में से हूँ, मैं ऐसी बंदी हूँ कि हाँ ठीक है, अगर मेरा ऐसा है कि हाँ भाई चलो करते हैं, मेरा माइंड फ्री है, फ्रेश है, तो मैं वो काम बहुत अच्छे से करूँगी. डजेंट मैटर कि वो कितना भी बड़ा काम हो, मैं कर सकती हूँ. बट द मोमेंट यू विल प्रेशराइज मी, आई विल बी दिस लाइक दिस. जब तक मैं प्रेशर खुद से लेने के लिए एक्सेप्ट, मतलब जब तक मैं खुद प्रेशर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तब तक के लिए तो मुझे कितना भी प्रेशर दे दो, मैं वो काम नहीं कर सकती. बट उसके बाद भी चलो ठीक है, उस बंदे ने मुझे बोला कि 2 टेक लगेंगे. मैंने खुद को समझाया था, मन्नत काम डाउन, तू बस इधर अपने काम से आई है, तू अपना काम निकाल और जा यहाँ से, इतना तेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है. एंड वो बंदा इतना रूड था, आई स्वेयर, लाइक पहली बार में मेरे से नहीं हुआ, फर्स्ट टेक में मेरे से नहीं हुआ, मेरा लिप सिंक चला गया. वो बंदा ऐसा सर पकड़ लिया एंड आई गॉट रियली एम्बैरेस्ड एट दैट मोमेंट बिकॉज आई वॉज लाइक शिट. एंड मेरा कॉन्फिडेंस तो नहीं हिला, बट मुझे वो वाइब नहीं आ रही थी भाई एक्ट करने में. मैं सच बता रहा हूँ, मुझे वो वाइब नहीं आ रही थी. मैंने जैसे तैसे, आई स्वेयर, मैंने जैसे तैसे वो ऑडिशन दिया. एंड उसके बाद हम लोग गए जहाँ पे उनका जो वो सिटिंग एरिया था, जहाँ पे हमने रजिस्टर वगैरह किया था, हम लोग उधर बैठने गए. एंड तो मैंने मैंगो से पूछा कि सर अब हम जा सकते हैं. तो देन उसने कि नहीं अभी आप बैठो, मैं अभी सर को दिखाता हूँ ये वीडियो, उसके बाद फिर आप जाना. तो मैंगो ने वाटरमेलन को वीडियो दिखाई, ठीक है. अब वाटरमेलन ने वीडियो देखी, अब वो आधा वीडियो भी नहीं देखा होगा, मैं बोल तो रही हूँ, मतलब वो 20 सेकंड भी नहीं देखा होगा गाइस. और उसने फ़ोन को ऐसे फेंक दिया
और वो मेरे को फिर पूछा, इतने रूडली पूछा कि आप करते क्या। लाइक बताया तो कि जो 10th पास किया अभी जस्ट एंड दिस एंड दैट। एंड देन वाज लाइक आपको एक्सपीरियंस है क्या? मैंने कहा हाँ है, मैंने वेब सीरीज़ कर रखी है। एंड ही वाज लाइक कि नहीं आपको ना और ज़रूरत है, और पहले ना आप मतलब कहीं से आपने एक्टिंग वैक्टिंग सीखी है क्या? मैंने कहा नहीं सीखी तो नहीं है, मतलब एक्टिंग नहीं सीखी। तो ही वाज लाइक कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, हमारे इधर तो सारे मतलब एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स आते हैं और आपको भी सीख के आना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना आप कहीं भी जाके एक्टिंग करवा दोगे, आपको तो बस ऐसे तुक्के में सेलेक्ट करना। एंड दैट शिट रियली, पता नहीं मुझे वो चीज़ हिट हुई, बहुत गंदी वाली हिट हुई। मैं चाहती ना मैं उसका उसी टाइम पे मैं उसका इमोशनल डैमेज कर देती, बट आई जेन्युइनली रिस्पेक्टेड हिम। आई वॉज जस्ट लाइक इट्स ओके मन्नत, काम डाउन योर सेल्फ। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा काम डाउन किया था, और उस टाइम पे मेरी मॉम भी सुन रही थी। माई मॉम वॉज ऑल्सो वेरी लाइक वी बोथ वर बीइंग वेरी कोऑपरेटिव एट दैट टाइम। तो ये सारी बात हुई थी एंड यू नो जो वाटरमेलन था वो बक्के जा रहा है, बक्के जा रहा है, बक्के जा रहा है, बंदा रुक ही नहीं रहा है। तो अभी मेरा ऐसा है ना कि पहले मेरा क्या था कि आई वॉज रियली वेरी इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ कि भाई ठीक है मैं ऐसे दिखती हूँ, ऐसे तो नहीं दिख रही, हंसते हुए तो पागल सी नहीं लग रही, ये वो ये वो। तो ऐसा कोई भी मुझे बोलता था ना तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती थी। लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा नहीं, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ तो वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वापस आ रहा है कि हाँ भाई मैं जैसी हूँ जैसे एक्सेप्ट करना करो, नहीं करना तो भाड़ में जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें पसंद नहीं आती तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सारी बात हुई। तो वो बंदा मेरे मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ठीक है मुंह पे बोल रहा है, लेकिन भाई वो चीज़ मुझे हिट हुई, ठीक है। एंड उससे जस्ट एक दिन पहले जब मैंने पहला वाला ऑडिशन दिया था, जो पहला वाला डायरेक्टर था उससे पहले जो मैं एक दिन पहले ऑडिशन देने गई थी, दैट डायरेक्टर रियली अप्रिशिएटेड मी, रियली एडमायर्ड मी, एंड यू नो ही वॉज जस्ट लाइक ओ माई गॉड आई एम जस्ट गोना यू नो तुम्हारे लिए जितना काम हो सकता है मैं तुम्हारे लिए उतना काम देखूंगा, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम देयर। एंड आई वाज जस्ट लाइक ओ माय गुडनेस, लाइक डायरेक्टर हो तो ऐसे हो ब्रो, ही वाज रियली कोऑपरेटिव, ही वाज रियली फ्रेंडली। और इस वाटरमेलन को देख के ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था क्या है ब्रो, प्रोफेशनल के नाम पे तो ये बंदा ज़ीरो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने ना सर को बोला मैं आई जेन्युइनली शो माई एक्सप्रेशन, आई वाज लाइक okay sir can we just go? I was genuinely like this, you won't believe me, I was genuinely like this. And at that moment my mom knew that I am gonna you know lose it. So then my mom was like okay एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं। एंड उन्होंने सर को भी बोला कि ओके हम लोग जा रहे हैं, तो सर बोलते ओके चलो ठीक है बाय। अब मैं गई और मैं उधर का स्टेयर्स भी इतना टट्टी था कि मैं उधर से उतरी, ठीक है। एंड उधर से उतरने के बाद फिर मुझे एक बिल्ली मिली, तो उस बिल्ली को मैंने थोड़ा सा ऐसा पेट वगैरह किया, तो दैन मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ। तो ये ना मेरा एक्सपीरियंस था। मैं ना मतलब अपने एक दोस्त को भी सजेस्ट किया था कि इधर तू आ जा, बट वो आ रहा था तो मैंने उसको बीच रास्ते में फिर मना कर दिया कि यार नहीं इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है इन लोगों का, तो तू मत, तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं क्यों तेरे को ऐसा बेकार में बोलूँ कि हाँ जाके तू अपना टाइम वेस्ट कर। तो उस बेचारे का भी मतलब यू नो पैसा वैसा सब कुछ चला गया, बट इट्स ओके। जो भी हुआ आज, ठीक है, मैं उसको एज एन एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। और the people out there who you know who all are interested in auditions and all stuff, let me just tell you one thing, that you're gonna be meeting these kind of people a lot. So you know I would suggest just keep yourself quiet and just know your worth, because the moment you know your worth you become calm, like you know you become very calm person. You if the सामने वाला person is shouting on you, you will be like okay yeah okay, so you'll be like this. And you know I don't know, but जो आज हुआ ना, from that moment I don't know why the hell I'm just being very negative,
बिकॉज मुझे वो इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी था उनके प्रोडक्शन हाउस का, उनके बोलने का तरीका एंड ऑल एंड एवरीथिंग. आई वाज जस्ट लाइक शिट मैन. आई लिटरली blocked that watermelon in front of them. I'm not gonna lie. I blocked them in front of them, in their production house. I blocked them. Literally. Because I'm that kind of a person. भाई तुम्हारी मेरे सामने तभी चल सकती है जब मैं चाहूँगी कि तुम्हारी चले मेरे सामने. इतना तो मैं किसी को नहीं बोलने देती भाई, फिर चाहे तुम कितने भी बड़े डायरेक्टर हो. और भाई डायरेक्टर, वो तो डायरेक्टर भी नहीं था, मुझे तो वो लग ही नहीं रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं कहाँ से उठ के आया है. बिकॉज एक होता ना आपके बोलने के ढंग से, आपके रहने के ढंग से वो एक वाइब आ जाती है कि हाँ भाई कैसा है वो बंदा, पता चल जाता है. उसका तो कुछ था ही नहीं यार. आई वॉज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटेड यार, लाइक आई वॉज रियली अनॉयड. So yeah, that's it. That's my like experience of today, and I really wanted to share. So I'm like feeling okay, like okay, chalo share kar diya. So yeah, this was all about today, and I hope that मैंने bore नहीं किया आप लोगों को. So yeah, I'll meet you guys soon in my next video. And basically मैंने ना अपना ये channel का नाम change कर दिया. I've changed it to Unfiltered Months. So basically it is going to be like that only, like I guess forever. So yeah, let's go, and I'll meet you guys in the next video. So make sure you like this video, comment below, and also if you can share, then please share. Okay, so I'll meet you guys in the next video, and yeah, keep watching my vlogs and videos and keep showing me your love and support. Cool, bye.